continue with the webinar today. First of all, I would again like to request everybody to please shut off their cameras so as to save on the internet bandwidth, and everybody will be able to see and hear ma'am better if all the cameras are shut off. So please switch off your camera button, and we can then proceed with the webinar. So first of all, thank you so much, ma'am, for joining us today. And this is a very exciting webinar, to be sure. Like, definitely, it's going to be really exciting. So first of all, I'd like to introduce myself. Hi, everyone. Thank you for joining us today. My name is Sai from the Neighbory team. मैं आज आपकी होस्ट होने वाली हूँ. मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूँ तो मैं एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हूँ और कॉर्पोरेट में काम किया है मैंने बहुत सालों तक, और अभी मैं नेबरी के साथ जुड़ी हुई हूँ. नेबरी के बारे में बताया जाए तो एक नेबरी इज एन ऐप जो स्मार्ट और डिजिटल नेबरहुड्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे नेबर्स एक दूसरे को भले ही जानते ना हो लेकिन कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म जिसपे आप एक दूसरे से मिलके जो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, कभी कभी पानी चला जाता है, एनी अदर इश्यूज, या फिर somebody wants to arrange a program, किसी लोकल टैलेंट को हमें सपोर्ट करना है, ये सब चीजें करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ऐप है जिससे आप सवाल पूछ सकते हो, सवालों के जवाब दे सकते हो. नेबरी वैसा एक ऐप है. ये आपको एंड्रॉइड पे भी सपोर्ट करता है, iOS पे भी सपोर्ट करता है. आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐप डाउनलोड कीजिए, ट्राई कीजिए एंड देखिए कि क्या हो सकता है. सो नाउ आई विल मूव अहेड. सो पहले तो मैं अपने आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. Shruti ma'am is a school teacher at Mother Teresa School in Pune, and she has a total teaching experience of 3 years. And बाकी का information ma'am खुद देंगी अपने बारे में. So ma'am, please continue. Hello everyone. Hi students and parents. I am Shruti Tripathi from Mother Teresa School. I am a senior teacher, teach 10th standard, class teacher of 10th standard, and also teach Vedic mathematics, maths and science. So this is my introduction. If you want to learn anything about maths, Vedic mathematics and science, you can ask any of your doubts in my YouTube channel or my mail ID or my WhatsApp number. Thank you so much, Thank you students. so much. You feel free to ask me anything on my WhatsApp number. Thank you so much, ma'am. Moving on, like I will just explain today's agenda. हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी, और फिर हम मैम से थोड़ा सवाल जवाब करेंगे. So today we'll be learning about Vedic mathematics, what it is, what are its components, और कैसे इससे हमें डे टू डे लाइफ में फायदा हो सकता है, कैसे हम क्विकली कैलकुलेशंस करना सीख सकते हैं. हम श्रुति मैम से ये भी जानेंगे कि उनको कैसे इंटरेस्ट आया था इस सब्जेक्ट में और उन्होंने कैसे शुरू किया है इसमें काम करना. और मैम हमें थोड़े से ट्रिक्स भी सिखाएंगी टू टू डू क्विक कैलकुलेशंस, टेबल्स लर्न करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. लेट्स मूव अहेड. तो मैम पहला सवाल मुझे आपसे ये है जो एक्चुअली मैं बोलना चाहूंगी कि वैदिक मैथ्स इज नॉट अ वेरी कॉमन टॉपिक. मतलब ऐसे सब लोगों को पता नहीं रहता है, मुझे भी बहुत कम पता था. तो आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट कैसे आया और आपने क्यों डिसाइड किया कि मुझे ये स्टडी करना है? Actually, when I was in 10th class, so my teacher gave me approximately 50 to 60 question for homework on daily basis, Oh my because God. at our time there was very vast syllabus. Okay. Actually, maths में भी 6 part होते हैं, like geometry, Mhm. algebra, trigonometry. तो Mhm. उस टाइम पे सभी अलग अलग बुक्स आते थे. आज के टाइम पे तो सब कंप्रेस हो गया है, बट देन उस Mhm. टाइम पे सभी सेपरेट थे. So we have to solve 50 to 60 question per day. At Mhm. that moment, my teacher taught me the short tricks of Vedic mathematics, and Okay. after that, I am really interested in mathematics. I also love to solve some problems.
sums, Mhm. and even now I can solve any of the sum without pen and pencil. I do Wow. not need to solve any type of calculation like multiplication, divide, square, cube. I can solve any of the question without pen and pencil. That is wonderful. So you got interested because of your teacher, basically. He was the one who introduced you to the world Right, of Vedic right. maths. So, ma'am, the next big question. Actually, I love maths. Mhm. Okay, Yeah, so yeah, you had a really good love for the topic, and that's why you uh, got interested in yeah, it. So, moving on, yeah, my yeah. next question to you is, what is Vedic mathematics? Like, if you could just explain it in a few words. Yeah, definitely. It is the main part of Yeah, our session yeah. because what is the Vedic mathematics? The word Vedic is came from Vedas. Like in Hindu religion, they are originated from the Ved, and the Mm-hmm. meaning of Ved is to know without any limit. Mm-hmm. मीन्स अभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कुछ भी लिमिट नहीं होना चाहिए. लिमिटलेस जो हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं, दैट वाज Barabar. rooted from Veda, and there are four types of Ved in our Hindu religion. So Mm-hmm. the Vedic mathematics came from the Atharvaved. So Right. there are there really vast syllabus in the Atharvaved. So Mm-hmm. the Rishi Swami Bharati Krishna Tirth ji Mm-hmm. cut the syllabus into 16 sutras and Okay. 13 sub sutras and Okay. represent to their peoples. Mm-hmm. Like they shows their shisha that these are the main part of that other way to solve any kind of the calculation. Like Okay. in Vedic mathematics, we cannot say that it is only for multiplication or division. It is also for big calculations and also for different types of mathematics like algebra and then trigonometry, then Mm-hmm. other parts like quadratic equation. We can solve any types of question from this. Hmm. राइट राइट सो ये जो आप सूत्रास के बारे में बात कर रहे थे तो ये वेदों में ऐसे दिए गए हैं सूत्र सॉल्व करने के लिए. Right, right. ओके. All these sutras are in Sanskrit, like there is Ekadhiki and Purvain. So there are 16 sutras in Sanskrit with their meaning. So we can see here the meaning as well as their sub-sutras, राइट. because most of the sutras have their own sub-sutras ओके. to solve any kind of calculation like this. राइट. So there are also sub-sutras and their meaning also available here. या So that कैन our सी student दैट. can enter and Yeah. So ma'am, how is Vedic mathematics different than say normal maths जो हम स्कूल में normally सीखते हैं? What is the difference and इससे क्या फायदा होता है? हम लाइफ में इसे कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए डिफरेंस क्या है वैदिक मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स में. सेम मेथड्स होते हैं. मैथ्स में हमें अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी, उसके फॉर्मूलेज होंगे. हम्म. वैदिक मैथमेटिक्स में भी हमें अलजेब्रा पढ़ाई जाएगी, बट इन हम्म. सूत्र के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे. और हम्म. उससे होगा क्या, नॉर्मल जो हम लोग फॉर्मूले यूज करते तो हमारे ब्रेन में, बच्चों के ब्रेन में एक ये टेंशन रहती है, अभी हमें ये हम्म. फॉर्मूले याद करने हैं, देन इनका आगे कहीं पे कोई यूज है क्या, हमें हमको आप पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे हो उसका कोई यूज. मतलब उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है कि अभी हमने टेबल लर्न किया, फिर मैंने स्क्वायर लर्न किया, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट. कैलकुलेशन सिखा रहे हैं. सो इसमें क्या होगा, 16 सूत्रास हैं जिनके हेल्प से हम अलग अलग टाइप के मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं. और ये बच्चों के लिए इजी इसलिए भी होता है बिकॉज ये एक मैजिक की तरह वर्क करता है. वी कैन से mathematics as a magic mathematics because राइट. राइट. in this method, because of this method we can solve any types of calculation within seconds. Wow, that is definitely amazing. और Yeah. लाइक वैदिक मैथ्स एक्चुअली कुछ कुछ बच्चे होते हैं मेरी तरह जिनको मैथ से डर भी लगता है और आई वाज क्वाइट अ वीक किड व्हेन आई वाज इन Right. स्कूल तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी मैथ्स में स्कोर करने के लिए. तो क्या ये मेरे जैसे बच्चों की लाइफ इजी कर सकता है कि जिनको डर लगता है या फिर समझने में बहुत टाइम जाता है? कैन वैदिक मैथ्स हेल्प किड्स लाइक दैट?
या डेफिनेटली एक्चुअली जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं, लाइक दोस्त हु हैव मैथ्स फोबिया, एंजाइटी, सो ये वैदिक मैथ्स उनकी ज्यादा हेल्प कर सकता है। लाइक अगर हमें 13 का टेबल याद नहीं होता है तो हम वैदिक मैथ्स के थ्रू सिंपल सिंपल ट्रिक्स सीख सकते हैं उसे लर्न करने के लिए। बिकॉज आफ्टर 5th क्लास कोई भी टीचर आपसे टेबल्स नहीं पूछता, उनका मेन मोटिव क्या होता है, आप टेबल्स लर्न कीजिए आगे की मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए। एंड बराबर। वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से हम लोग टेबल को समझ सकते हैं, लर्न करने में, रटने में एंड उसे समझने में काफी डिफरेंस होता है। आप समझ के लेंगे तो काफी लॉन्ग टाइम के लिए वो आपके ब्रेन में रहेगा। सो बराबर, ये एक एक्सीलेंट। अच्छी चीज है। एंड उसको अभी मान लीजिए 13 का ही टेबल है तो उसको हम लोग ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि सेकेंड क्लास का बच्चा हो या 12th क्लास का बच्चा हो, हर कोई उसे एंजॉय करता है पढ़ने के लिए। नॉर्मली आप मैथ्स किसी को पढ़ाएंगे ना तो सोचेंगे मैथ्स पढ़नी है, कितना हेक्टिक होगा, हमें समझ आएगा नहीं आएगा। बट जब हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं, आज कुछ नई ट्रिक सीखने को मिलेगी, आज मिस कुछ नया मैजिक ट्रिक सिखाने वाले हैं। उन्हें एक मतलब एक्साइटमेंट वो आता है। वेट करते हैं कि कब हमें या सिखाएगा। या या मैम, जस्ट वैदिक मैथ्स जैसे आपने बोला कि आप यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हो, तो कैसे पढ़ाते हो? मतलब राइट। मैथ्स इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी इजी टू टीच, सो यूट्यूब पे कैसे काम करता है? लाइक देखिए अभी जब से इशू हुआ है सभी लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज स्कूल जा नहीं सकते, बाहर आप लोग कहीं जा नहीं सकते। तो इस समय ऑनलाइन टीचिंग एज अ ट्रेंड, काफी ट्रेंड हो गया ऑनलाइन टीचिंग का। एंड मैं पहले से भी वीडियो बनाती थी, तब बच्चे इतना फोकस नहीं करते थे बिकॉज उन्हें लगता था ऑनलाइन हम कैसे पढ़ाई करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा एंड ऑल। बट अभी वो उस चीज को समझ रहे कि ऑनलाइन पढ़ाई करना ज्यादा अच्छा है कहीं बाहर ऐसे जाके, जैसा आजकल का कंडीशन है। सो अभी उन लोगों को और भी सिंपल ट्रिक्स चाहिए रहते हैं, आजकल बच्चे रेडी हैं नई नई चीजें लर्न करने के लिए। सो इससे बिल्कुल उनकी बिल्कुल। काफी हेल्प होती है। एंड जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उस पे मैं ट्रिक्स तो बच्चों को सिखाती ही हूँ, कोई भी क्लास का बच्चा हो, 4th क्लास 3rd क्लास, वो भी उनकी भी ट्रिक्स है। ऐसा नहीं है कि वो इतने छोटे बच्चे हैं आप उन्हें क्या सिखाएंगे। सो उनके लिए एडिशन के ट्रिक्स होते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स होते हैं। एंड आफ्टर दैट जितने भी हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो उनके लेवल के भी ट्रिक्स रहते हैं जो हम लोग यूट्यूब पे सिखा सकते हैं। आफ्टर दैट कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में काफी शाई होते हैं, वो अपने टीचर से अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर सकते। यूट्यूब पे कैसा है, वो उनका फेस नहीं दिखाई देगा, उन्हें किसी को फेस नहीं करना है, तो आराम से अपने कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते बिल्कुल हैं। एंड बिल्कुल। जब भी हम लोग कमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, देन उनका एक कलेक्शन करके डाउट क्लास क्रिएट करते हैं। उस ओके डाउट क्लास में सभी बच्चों के डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो एक अलग सा वीडियो आप बनाते हैं उसके लिए? राइट। ओके, सो मैम एंड उसमें मेंशन होता है कि हाँ, किस टॉपिक पे डाउट क्लासेस हैं। ओके ओके। तो मैम लाइक सिर्फ आपके इसमें मतलब यूट्यूब के कमेंट्स पे आपको सवाल पूछते हैं या बच्चे, लाइक आपने आप बोला था कि ईमेल वगैरह से भी पूछ सकते हैं ऐसे, तो और कौन से या मीडियम? राइट, हमने व्हाट्सएप का भी नंबर दिया हुआ है बच्चों को, उसके अलावा आप लोग मेल पे पूछ सकते हैं, या फिर ओके। फेसबुक का पेज है श्रुति मिस ट्यूटोरियल्स करके, उस पे भी आप लोग क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो राइट। ग्रुप भी बनाया हुआ है एक्चुअली हमने फेसबुक पे, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये सारे मीडियम है, कहीं से भी बच्चे हमसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, डायरेक्टली राइट। इनडायरेक्टली, जैसे उनको कंफर्टेबल है। दैट इज वंडरफुल, दैट इज रियली वंडरफुल। सो मैम, मेरे तो सवाल चलते ही रहेंगे, बट आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वेबिनार, कि आप राइट राइट। कुछ सबको यहाँ पे, मुझे इंक्लूडेड, कुछ ट्रिक्स सिखाने वाले हैं या वैदिक मैथ्स के। डेफिनेटली। तो मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ और आप मुझे बस बताइएगा कि कब आपको स्लाइड चेंज करना है, एंड देन यू या श्योर कैन टेक ओवर। श्योर। Okay, so I'm just moving on. Yeah, please continue, ma'am. ओके। सो बच्चों देखो, ये हमारे पास एक सूत्रांश है, सेकंड नंबर का सूत्र है निखिलम नवतश्चर्मम दस्तः। इसका मतलब क्या होता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10।
ये सेकेंड नंबर का सूत्र है जिसे हम लोग इंग्लिश में फॉर्मूलाज बोलते हैं, राइट। सो इसका क्या बेसिकली मीनिंग रहता है, हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सीखने वाले हैं और ये भी स्पेसिफिक टाइप के मल्टीप्लीकेशन होते हैं। देखिए जब भी हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स सीखते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक साइड हम लोग हाफ पार्ट का आंसर फाइंड आउट करते हैं एंड दूसरी साइड हाफ पार्ट। लाइक अगर हमारे पास एक नंबर है 31, so the unit digit is 1 and the tens digit is 3. so हम 1 की साइड राइट हैंड आंसर निकालेंगे एंड देन 3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से दो पार्ट में इसका आंसर डिवाइड होता है। नाउ वी विल सी दिस, द फॉर्मूला कैन बी वेरी इफेक्टिव applied in multiplication nearer the base like 10, 100 and thousands. So there is a table. Can you back the slide? Okay, yeah, sure. Yeah. Sorry. Yes, no, it's true. So students, you can see here that there is a collection of numbers, then base, then number and base, and the last one is deviation. So here is a number 14. It is near about 10. Okay, so we have to find the number near about 10, 100 and 1000 only. We cannot find number near 30, 20 and 40. Okay, we only find 10, 100 and 1000. So 14 is near about 10. So it is the base number. Then we will find the number 14 and base 10. After that, we will find the deviation, which is 4. Is that clear? Similarly, in the 100, the number which is near about 100. So what we will do? We will select a number like 97, then the base number which is 100, and then find the difference which is -3. Is that clear? We also use this trick for plus number like 112. So again we will choose 100 as the base number and then find the deviation. What is the deviation? The difference between both the numbers. Is that clear? So the difference is 12. Now next slide. Yeah. ओके सो ये जो अभी हमने मेथड सीखा है जिसमें हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, नंबर नियर अबाउट 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो यहाँ पे देखो हमने दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं, दिस वन एंड दिस। नाउ व्हाट वी विल डू, एग्जांपल फाइंड 97 into 94. There are two numbers and near about 100. You can see the base number is 100. Okay, so now what we will do, we will find the deviation. We will subtract 97 from 100. So what we will get, we will get 3. Then we will subtract 94 from 100 again. So what we will get, it is 06. Clear? पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 में से 97 को डिवाइड करेंगे, so the 3, then 100 minus 94, so the answer is 6. Now what we will do, we will multiply the right hand side number. This is the right hand side answer and this one is the left hand side answer. Is that clear? So 3 into 6, which is 18. Yeah. Now we will subtract cross subtraction like 97 minus 6 and 94 minus 3. Is that clear? 97 में से 6 डिवाइड करें, 6 माइनस करेंगे, then we get 91. or if we subtract 3 from 94, then again we will get 91. Is that clear? 97 में से 6 माइनस करो, आंसर क्या आएगा, 91 आएगा. एंड अगर 94 में से हम 3 को माइनस करते हैं, ओके 94 में से 3 को माइनस करते हैं, तब भी हमारा आंसर 91 आएगा. सो द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन इज 91, 18. Is that clear? 9118. It is our answer. अब इस मेथड को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे, लाइक 98 into 97. Is that clear? So अब हम लोग क्या करेंगे, first of all we will subtract 98 from 100. So the answer is
0, 2. Then we will subtract 97 from 100. So what we will get? It is 03. Okay. सबसे पहले हमने 100 में से दोनों भी नंबर को माइनस किया. 100 minus 98 which is 2. Then 100 minus 97 which is 3. Is that clear? Now we will find the answer of right hand side and left hand side. Okay. So first of all we will subtract 3 from 98 like this. अब देखो बच्चों, आप या तो 98 में से 3 को माइनस कर सकते हैं या फिर 97 में से 2 को माइनस कर सकते हैं. 98 में से 3 माइनस करो, क्या आएगा? 95 आएगा. The number we get 95, and on the right hand side we will multiply both the number 3 into 2 which is 6. So what is the answer? The answer is 9506. Is that clear to all of you? सभी बच्चों को फॉर्मूला नंबर 1 समझ में आया क्या? Okay. Now we can move to next slide. Okay. Okay. अभी हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर. लास्ट जो हमने सीखा उसमें क्या था? उसमें आप नियर अबाउट 10, नियर अबाउट 100 एंड नियर अबाउट 1000 का ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे. बट इसमें हम लोग कोई भी 2 डिजिट्स ले सकते हैं, राइट? एंड ये जो फॉर्मूला है इसका नाम देखिए क्या है? ऊर्ध्व त्रियंग भयम. Okay, this is the name of the formula, and the meaning of the formula is vertically and crosswise. Means पहले हम लोग vertically multiply करेंगे, then cross में multiply करेंगे. Like this. Look at this example. 33 into 43. These are the two number where we will multiply. Okay. So first we will multiply both the unit place like 3 into 3. Okay. Here you can see that first of all we will multiply 3 into 3. Then we will cross multiply like 3 into 3 plus 4 into 3. Okay. This is the cross multiplication. And in the most left side what we will do? We will again vertically multiply like 3 into 4. Is that clear? सबसे पहले हमने क्या किया? राइट हैंड साइड की जो नंबर है 3 into 3 उन्हें मल्टीप्लाई किया. देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 3 plus 4 into 3. राइट? उसके बाद लेफ्ट साइड में हम लोग लेफ्ट नंबर लाइक 3 into 4 का मल्टीप्लाई करेंगे. देन वी हैव टू सॉल्व सिंपली. 3 into 3 it is 9. Now 3 into 3 9 plus 4 into 3 12. So the addition of 9 and 12 is 21. Then most left side what we will do? 3 into 4 which is 12. So now what we will do? We will write the answer in simple manner. Like first of all we will write started from the right hand side. We will start from the right hand side. So we will write 9 1. Then we will add both the two number, the 2 of 21 and the 2 of 12. We will add both the numbers. So the answer is 4. And in the last we will write 1. So the answer is 1419. Is that clear? Okay. So इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और मेथड है. देखो मेथड नंबर 2, मल्टीप्लाई ऑफ 11. अब हम लोग क्या करेंगे? 33 into 43. I'm sorry to interrupt you, ma'am. People are asking for an explanation again. So if we could just do like explain this method again. Yeah, sure. Yeah, because a lot of people are asking for an explanation again. Yeah, sure. देखो बच्चों सबसे पहले हमें नंबर क्या दिया गया है? 33 into 43. So सबसे पहले हम लोग यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 and 3. So we will multiply 3 into 3 which is 9. We will write 9 there. Then we will cross multiply like 3 into 3 plus 4 into 3. This is the cross multiplication. So we will write 3 into 3 which is 9 and 4 into 3 which is 12.
Is that clear? Now, in the last part, what we will do, we will multiply tens place number, which is 3 and 4. So we will multiply 3 into 4. Is that clear? Now, again, we will start from right side. 3 into 3, which is 9. Then middle part, 3 into 3, which is 9, plus 4 into 3, which is 12. And in the left side, 3 into 4, which is 12. Right? Now what we will do, we will arrange all the number in simple manner. Like, first of all, we will write 9 from right side. Then we will write 1. And then we will add two numbers. The 2 of 21 and the 2 of 12. Okay, we will add both these numbers. Okay, then in the last, we will write 1 of 12. Okay, so the answer is 1419. Okay, is it clear to all of you? Yeah, it's much clearer now. Okay, so now we will use the method number 2 to multiply any two-digit number where the one digit is multiplication of 11. You can see here there are two numbers 33 into 43, in which 33 is a multiple of 11, right? Right. We can write in the place of 33 3 into 11. Okay, first of all, we will factorize the 33 in 3 into 11 into 43. Is that Hmm. clear, the first line? Now what we will do, we will multiply 3 into 43 and keep the 11 separate. Hmm. Okay, so the multiplication of 3 into 43 is 129. Hmm. Okay, this is the simple multiplication we can do. It is 129. Now what we will do, we will multiply with 11. So there is a simple method to multiply with 11 is, first of all, we will write the unit number, which is 9. Then we will add two numbers, okay, because 11 has two digits. That's why we will add only two numbers, like 2 plus 9. What is 2 plus 9? It is 11. 11. Yeah. So, so we will write one here and one for carry, okay. Okay. Then what we will do, 2 plus 1. 2 Hmm. plus 1 is 3. 3. And the carry one is 4, right? Yeah. Then in the last, we will write the last number as it is. So the answer Hmm. is 1419. It is clear or any doubt? I think people are saying it's clear and they're finding the second method easier. Yeah, because it's a multiplication of 11. Yeah. Yeah. Okay. So this actually I found the first method easier, like it's more logical for me. But yeah, both methods are quite easy. Yeah. But there is a condition. We can use first method for any two-digit number, any Yeah. three-digit number, and Yeah. we can use the second method only when we get a multiple of 11. 11. Okay. Yes. 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 That is Next. actually the multiplication by 11 is also quite simply you explained it. Yeah, yeah. Okay. So the next trick. Okay, so this is a next trick, and this is not any kind of formula. It is just a simple trick because in our audience there are lots of students from class 3rd, 4th, 5th. Hmm. Hmm. So it is very comfortable to learn table between 11 to 20, or we Mhm. can say that 12 to 19, because 11 and 20 तो बच्चे easily याद कर लेते हैं, right? Yeah. So Yeah. अब हम लोग क्या करेंगे, 12 से 19 के बीच के जितने भी टेबल्स हैं उन्हें लर्न करने का ट्रिक देखेंगे. ओके Okay. स्टूडेंट्स, सो वी विल टेक the table of 13 and then we will divide 13 in 1 and 3. Hmm. Okay, so first of all we will write the table of 1, which is 1 2 3 4 and so on till Mhm. 10, right? And then we will write the table of 3. So 3, 6, 9, 12, 15 and so on till 30. ओके Right. बच्चों, Right. पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 का टेबल लिखेंगे, देन
3 का टेबल नोट डाउन करेंगे। देन उसके बाद देखो कितना सिंपल मेथड है, 1 and 3 13, 2 and 6 26, 3 and 9 39। देन अब देखो 3 के टेबल में 2 डिजिट नंबर्स आए हैं, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस के नंबर को एज इट इज पुट करेंगे, और जो टेंस डिजिट पे नंबर है उसे हम 1 के टेबल वाले नंबर से ऐड कर देंगे, लाइक 4 + 1 5, okay, and put the unit number as it is. So the answer is 52. Two. Similarly, in the next one, what we will do? We will write 5 as it is on the unit number and then add 5 + 1, which is 6. Okay. Then again, we will write 8 as it is in the unit place, and in the tens place, we will add 6 + 1. Yeah. Similarly, we will add all the numbers till the 10. Is that easier, student? Uh, I have quite understood it, but I think somebody is saying that they didn't get it. So हम शायद आगे के अगर examples लेंगे तो easily समझ में आएगा. Right, definitely. देखो बच्चों, जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक हमने अभी लिया था 1 and 3 का टेबल, 3 के टेबल में 3 2 6 3 9 सिंगल डिजिट थे, उसके बाद डबल डिजिट आने शुरू हो गए थे। बट यही एग्जांपल अब हम लोग देखेंगे 17 के टेबल में। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल राइट द टेबल ऑफ 1, देन वी विल राइट द टेबल ऑफ 7। सो इन टेबल ऑफ 1 देयर आर ऑल, ये जो रेड में मार्क है, that is the table of 7. Yeah, this is the table of 7. And in this table of 7, there are all number in 2-digit form. Look at this. After 7, there is 14, 21, 28. All are 2-digit number except the first one, 7. Okay. So what we will do in the beginning means from the 14, what we will do, we will write the unit place 4 as it is, and the 1 of 14 we will add to the table of 1, which is 2. So the 2 + 1, 3. 3. In the next step, again what we will do, we will write unit place 1 as it is and add the tens place. At the tens place, like 3 + 2, which is 5. And in the next line, we will write unit place 8 as it is and add remaining number 4 + 2, which is 6. So बच्चों, अभी आप लोगों को इजियर लग रहा है क्या? क्योंकि ये मेथड हम लोग पूरा 12 से लेके 19 तक सभी टेबल में सेम मेथड यूज करते हैं। देखिए 19 के टेबल्स में भी हमने सेम मेथड अप्लाई किया है। सबसे पहले 1 का टेबल लिखा, देन 9 का टेबल लिखा, एंड उसके बाद यूनिट प्लेस के जो नंबर होते हैं वो हम सेम एज इट इज लिख देते हैं, और जो टेंस प्लेस के नंबर होते हैं उन्हें हम आगे वाले नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। राइट। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या आप लोग के जनरल मेथड से एवरीबॉडी इज सेइंग दैट इट्स वेरी इजी करके, बहुत सिंपल है। डेफिनेटली आई विश आई न्यू दिस व्हेन आई वाज इन स्कूल। यार लिटरली एक्चुअली बच्चों को लर्न करने में दिक्कत होती है, वो याद नहीं कर पाते हैं 17 6 जा मे बी 103। बट एक्चुअली हमें किस पे फोकस करना है बच्चों, हमें यूनिट प्लेस पे फोकस करना है। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई 7 with 6, द यूनिट प्लेस ऑलवेज इज 2। अभी हम लोग अगर 27 का भी टेबल लिखेंगे ना, अगर 27 का भी टेबल लिखना है तो हम सेम मैनर में लिखेंगे। लाइक पहले हम लोग 2 की टेबल लिखेंगे, देन 7 की टेबल लिखेंगे और सेम मैनर में उसे ऐड कर देंगे। क्लियर है बच्चों? Yeah, definitely. Everybody is saying yes. That is really ये काफी सिंपल मेथड है टेबल्स लर्न करने का। एकदम बिल्कुल ही सिंपल है। थैंक यू सो मच मैम। बिकॉज और कि हमें, मुझे तो मतलब आई कैन लर्न मैथ्स फॉर लाइक द रेस्ट ऑफ द डे, बट हमारा टाइम धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है।
तो Yeah. हमने ये 3 मेजर ट्रिक सीख लिए। पहले तो 99, 999 जैसे बड़े बड़े नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई Right. करते हैं एक दूसरे से। फिर कौन से भी 2 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये जो ट्रिक है मेथड 1 जो है वो सबसे इजी है, बिकॉज उसमें 11 का ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और टेबल्स Right. तो मतलब दिस इज अ लाइफ सेवर फॉर everybody, Our students. for all students, actually for all students. So Yeah, definitely. yeah, thank you so much for teaching us this today, ma'am. So I think Yeah, 10 yeah. minute के लिए we can answer a few questions. So अगर Yeah, yeah, sure. कोई पेरेंट मैम से स्पेसिफिकली वैदिक मैथ्स के बारे में सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज मुझे चैट पे भेज सकते हो, आप चैट पे लिख सकते हो। या फिर अगर बच्चों को कोई स्पेसिफिकली मैथ्स से रिलेटेड सवाल है तो ये मैम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उनका ईमेल आईडी दिया हुआ है, उनका व्हाट्सएप दिया हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ये उनका यूट्यूब चैनल का नाम है श्रुति मिस ट्यूटोरियल्स करके। तो आप जो भी वैदिक मैथ्स रिलेटेड सवाल है वो मैम को पर्सनली भेज सकते हो, और उन्होंने जैसे बोला कि वो एक डाउट सॉल्विंग वीडियो क्रिएट कर देते हैं सबको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर किसी को कुछ भी सवाल है अभी मैम को पूछने के लिए तो प्लीज चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, मैं मैम को पढ़ के पूछ दूंगी। Yeah, sure. या लेट्स जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, वो जो भी होगा किसी को सवाल होंगे तो वो पूछ सकते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ टू रिमेम्बर द टेबल ओरली। Actually, there is no need to remember the table orally because we are not the student of 5 standard. आप लोग जब भी 5th standard तक होते हैं तभी आपको टीचर्स टेबल पूछते हैं कि बेटा 5 का टेबल सुनाओ, 6 का टेबल सुनाओ। आफ्टर दैट आपसे कोई भी टेबल नहीं पूछता है। क्यों? क्योंकि टेबल्स का सिर्फ एक ही वर्क होता है कि आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रिक टू लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई एनी ऑफ द बिगेस्ट नंबर. Okay, ओके and I will definitely teach you the biggest calculation. So don't worry about कि हम टेबल्स को लर्न कैसे करें। आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, जो मेथड मैंने आपको बताया है टेबल्स को लिखने का, जब आप उसको 5-6 बार ट्राई करेंगे आपको डेफिनेटली टेबल अपने आप लर्न हो जाएगी। आपको पेन एंड पेंसिल का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही ओरली आंसर देंगे। लाइक आपसे, अच्छा ठीक है, आपको मैं एक ओरली एक एडवाइस देती हूँ। लाइक कुछ अच्छे टीचर्स या अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो बोलते हैं अगर आपको इतना नॉलेज है तो बताइए 17 into 6 कितना होगा या 15 into 9 कितना होगा। डायरेक्टली वो बीच से कोई भी नंबर पूछते हैं। अब इस जगह पे हमें क्या करना है, जो भी नंबर है लाइक 15 into 9, so first of all we will multiply 9 into 1 of 15. Look at this, there is 15 and 9, so first we will multiply 9 into tens digit, and what is the tens digit? It is 1. So 9 ones are 9. So we will write in the place of 9 we will write 90. Why we will write 90? Because we will multiplying the tens number. Okay, हम tens number से multiply कर रहे हैं इसलिए 90 लिख लो. Then we will multiply 9 into unit digit which is 5. So 9 fives are 45, right? So we will write 5 in the unit place, and the 45, 4 of 45 we will add that 4 to the 9 which we multiplied earlier. So the our answer is 135. Okay, हम लोग किसी भी नंबर का आंसर ओरली निकाल सकते हैं बच्चों। हमें टेबल लर्न करके किसी को भी सुनाने नहीं है, हमें सिर्फ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सॉल्व करने हैं। सो हम इसे ओरली भी कर सकते हैं। ये जो मेथड मैंने आपको अभी बताया है, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप इनमें से किसी भी कॉन्टेक्ट डिटेल में जाके हमसे पूछ सकते हैं, सो दैट आई विल टीच यू दैट मेथड रिटन इन रिटन। मैम आपने बोला कि वैदिक मैथ्स बाकी सब, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सवाल आ रहे हैं कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं लाइक ट्रिग्नोमेट्री रहता है, ज्योमेट्री रहता है, या फिर सरफेस एरिया वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए भी क्या वैदिक मैथ्स में ट्रिक है? डेफिनेटली यहाँ पे 16 सूत्रास हैं जिनमें से अभी मैंने आपको सिर्फ 2 सूत्र पढ़ाए हाँ, हैं। 2 पढ़ा है बराबर। आगे की सूत्रास में आपको सारी डिटेल में चीजें मिलेंगी, सारी चीजें So डिटेल में to मिलेंगी। जब answer अगर to आप लोग answer को Vaishnavi's वैदिक, question, Vaishnavi is asking since quite a bit of time
कि बिग क्वेश्चन कैसे सीखते हैं, बिग क्वेश्चन कैसे सीखते हैं, तो आई थिंक द आंसर वुड बी कि वैदिक मैथ सीख लो, आपको सब आ जाएगा। या डेफिनेटली। एंड जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि बिग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये हम्म सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा आप वैदिक मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे, उतने हम्म बड़े बड़े कैलकुलेशंस आप इजीली कर लेंगे, विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। राइट। सो बिकॉज ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड है। राइट। सो जो भी नए नए आपके यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देख रही हूँ, तो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम पूरा क्लास रखेंगे इसके लिए, कि एक इन्फॉर्मेटिव वेबिनार है। या तो आप मैम के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहां पे अगर उन्होंने कुछ इसके बारे में वीडियो जरूर बनाया होगा, या फिर आप मैम को ईमेल लिख सकते हैं। आई कैन सी मिस संजीता तिवारी आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि आप ये कैसे सॉल्व करना है। तो या आप मैम को जो भी आपका सवाल है, आप मैम को ईमेल कर सकते हैं। आपको ईमेल यहाँ पे उनको इनको उनका दिख रहा है, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वो आपको मतलब पूरे ट्रिक्स सिखा देगी आई फील। और या डेफिनेटली। yeah, I'm just checking ki ha, there is one more question from Venkatesh asking, ma'am, is this trick suitable for all tables? Yeah, definitely, but you can't use them to all tables. Why? Because if is there any number like 97 into 9, तो Hmm. आप लोग क्या करोगे? जो मैंने अभी लास्ट का ट्रिक बताया है ना ओरली, Hmm. वो ज्यादा आपके लिए प्रेफरेबल है। बिकॉज Okay. आपको सिंपल 2 मल्टीप्लाई करने और आंसर आ जाएंगे। जबकि आप अगर पूरा टेबल का मेथड यूज करेंगे, देन 97 के लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द टेबल ऑफ 9, then Hmm. the table of 7, and Right. then after solving all 1 to 8 you will get the answer 9. Yeah, that is very tedious. तो जो छोटे छोटे हैं, Yeah. मतलब शायद 29 तक हम ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो मेथड बताया वो सिंपलर रहेगा। या फिर आप इतने फ्रीक्वेंट हो कि आपको टेबल यूं लर्न हो जाती है। लाइक अभी आप मुझसे पूछेंगे मिस इसका आंसर क्या होगा, हम्म देन मैं बोलूंगी 9 into 9 बेटा कितना होता है, फिर आप उसका वैल्यू निकालेंगे, 9 81, 9 yeah, 81। yeah, देन उसके बाद आप बोलेंगे कि 7 9 बताइए, देन 7 9 कितना हो जाएगा? 63 हो yeah, जाएगा। देन उसके बाद हमें जो मिडिल के नंबर ऐड करने हम्म थे, हमने आपको सिखाया है, हम्म उससे जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आपका यूं सेकेंड्स में आ जाएगा। Like बिल्कुल 81 बिल्कुल। plus 63, where we will हम्म add 1 and 6, so which is 7. हम्म So the answer is हम्म 8 7 and the last one is 3. This is the answer of राइट 97 into 9. तो उसके लिए आपको राइट। प्रैक्टिस की जरूरत है। सॉल्व आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल हम्म। नहीं, बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो हमें पहले ओरली टेबल्स कैसे लर्न करते हैं वो सवाल पूछा था, तो वो बोल रहे मैम कि उनका बेटा या बेटी सेकंड क्लास में है, एंड दैट्स व्हाई शी इज आस्किंग कि ओरली कैसे लर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, कुछ एडवाइस होगा हमारे पास? या डेफिनेटली। देखिए, जितने भी छोटे बच्चे हैं, सेकेंड क्लास थर्ड क्लास, उनको हमें बच्चों को देखिए बेसिक तो सिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने सेकेंड क्लास के बच्चों को इंक्लूड नहीं किया इसमें, 4 to 5 से लेकर के किया। बिकॉज 1 to 10 का टेबल तो बच्चों को लर्न करना पड़ेगा। क्योंकि हम्म अगर हम इतने छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा आप नंबर को ऐड करते जाओ एंड आपका आंसर आ जाएगा, तो फिर वो कुछ हम्म ग्रास्प करने की जगह सोचेंगे अरे इतना सिंपल है, ऐड करके ही निकालना है, तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करें। तो हमें उन्हें ऐसे इतनी जल्दी उस शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं सिखाने। लाइक सेकंड थर्ड के बच्चों को शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल मत सिखाइए, उन्हें थोड़ी सी मेहनत करके ही आगे आने दीजिए, एंड देन बट उन्हें शॉर्ट ट्रिक सिखाइए। मैम अगर, एटलीस्ट उन्हें 1 to 15। या अगर 1 to 9 अगर उनको टेबल याद है, तो देन दे कैन यूज दिस ट्रिक, राइट? या या डेफिनेटली। ओके ओके, ग्रेट। एटलीस्ट 9 तक तो टेबल लर्न करना ही बेटर है। राइट राइट बिल्कुल। और मुझे सवाल मैं देखती हूँ अगर कुछ है तो, दिख तो नहीं रहे हैं। आई डोंट थिंक देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस। और अगर कोई स्पेसिफिकली मैथ से रिलेटेड किसी को सवाल है, तो प्लीज मैम को रीच आउट कीजिए। हम यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है हमारे पास पेज पे डिस्प्लेड, और आप व्हाट्सएप ग्रुप के जिस मेंबर हो उस पे भी हम मैम के कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉरवर्ड करने वाले हैं सबको। तो कोई भी सवाल हो, कुछ भी सीखना या हो, तो मैम से आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। वो बहुत पैशनेटली वो यूट्यूब चैनल पे सबको सिखा रही है, सबको उनका जो ज्ञान है वो दे रही है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज
इसमें से आधी भी चीजें मुझे 10th में या फिर मुझे स्कूल में पता होती तो मेरा लाइफ बहुत इजी हो जाता. बट या थैंक यू सो मच. या डेफिनेटली एक्चुअली सर जी, हम लोग ने ये वैदिक मैथमेटिक्स सीखा नहीं है, एंड ये जो सेशन है हमारा, इसका मेन यही मैं चाहती हूँ कि बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स सीखें, एंड पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल में ये ऐसा डिमांड करें कि हमारे स्कूल में वैदिक मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आना चाहिए, जिससे बच्चे उस चीजों को सीख सके. ये हमारे हिंदू रिलीजन, या हम कह सकते हैं हमारे इंडिया का जो कल्चर है, उसमें ये चीजें सिखाई जानी चाहिए इन स्कूल. राइट राइट, डेफिनेटली डेफिनेटली, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस कि ऐसी अगर स्पेशली चीजें जिससे लाइफ आसान होता है तो वो क्यों नहीं सीखे. तो इट डजेंट मैटर वो कहाँ से आ रही है, लेकिन अगर अच्छा है तो क्यों नहीं. मैम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और मैं बाकी भी सब लोगों ने जिन्होंने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया, हमें लिमिट क्रॉस हो गई जूम मीटिंग की, इतना अच्छा रिस्पांस दिया. तो थैंक यू सो मच एवरीबडी. And if anybody has any more questions, please reach out to ma'am on her personal contact details. And मैं नेबरी की तरफ से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक तो प्लीज हमारे ऐप पे आइए, आपको डेफिनेटली यूजफुल चीजें मिलेंगी. मैं पर्सनली हर रोज एटलीस्ट 5 से 6 बार वो ऐप पे जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे न्यूज आइटम्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको आपके एरिया के बारे में जो अलग अलग लोग चीजें कर रहे हैं उसके बारे में पता चलता है. और लास्टली मैं नेबरी के और से सबको ये बोलना चाहूंगी कि आजकल हमारे रिस्ट्रिक्शंस जो हम रह रहे थे इस पैंडेमिक के बीच में, वो कम हो गया है, खत्म हो गए बहुत जगह पे, लेकिन अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं हर रोज. तो प्लीज स्टे सेफ, keep yourself and your family safe, and keep learning. Thank you so much. Thank you so much all students, parents and everyone for attend our session. And I'm also thankful to the Neburi team because they are conducting this webinar. And I will suggest all of you to join the Neburi app. And you can download it from Play Store. It is really helpful for your daily life. Like अगर आपको कोई भी suggestions चाहिए daily life के लिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है. देन आप उसमें न्यूज भी डेली का देख सकते हैं. आपको कोई अपना एडवर्टीजमेंट करना है, कोई पोस्ट शेयर करना है, या फिर मोस्टली पीपल इवेंट करते हैं, तो अगर आपको कोई भी इवेंट भी अपना पोस्ट करना है, देन आप इसको नेबरी को यूज कर सकते हैं. एंड अच्छी बात क्या है, नेबरी ऐप पुणेकर्स ने बनाई है. ये कम्प्लीटली इंडियन ऐप है, 100% इंडियन ऐप है. तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हमारे इंडियन ऐप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के बीच में. एंड बी इंडियन बाय इंडियन का जो टैगलाइन है, उसको भी ज्यादा प्रमोट करें. Download this app and use this. It is we can say that it is similar to the Instagram also, because we can share any kind of post, we can read news, and everything what you want in your daily life you can post there. So thank you very much once again for attending my session, and thank you Neburi team. Thank you so much. Don't forget to download the Neburi app.